लिए चलते हैं दिल्ली। सोर्सिंग लीडर्स के अवार्ड नहीं हुए जो बिजनेस देते हैं, और बिजनेस देने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो मोटिवेटेड हैं। तो पहला काम है हमें वो मोटिवेशन दिखाना और वो अध्यात्म दिखाना कि वो और बिजनेस दें। तो मैं चाहूंगा, हमारे 5 एमिनेंट अवार्ड्स हैं यहाँ पर जो हमें आज देने हैं। विपिन, कैन आई हैव द लिस्ट? लेट सो पहले मैं चाहूंगा तनुजा जी प्लीज फैसिलिटेट करें हमारे मंत्री जी को। सर, ये हमारी 2 साल की जर्नी है। इस किताब का विमोचन हम आपसे करा रहे हैं। इसको जरूर पढ़िएगा। और पिछले 2 साल में बीएसएल ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, उसका इसमें पूरा स्टोरी है। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड है पहले, और अवार्ड सिर्फ नाम के लिए है। ये इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है कि इनका अगले 5 साल का क्या प्लान है हमारे देश के लिए। प्लान तो हो गया, ख्याल तो हो गया, लेकिन वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे उसको अचीव करने के लिए, इस बेसिस पे ये अवार्ड है। तो पहला अवार्ड है नितिन प्रसाद, वॉलमार्ट। आई वुड लाइक एवरीबडी टू हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नितिन। मैं जब फोन करता हूं, नितिन बैंगलोर में नहीं होते सर, ये पूरा देश घूमते हैं, मोटिवेट करते हैं और इतनी जान लगाते हैं कि हमारा देश सेकंड लेवल पे जा सके और एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर सके। संदीप मारवा जी, फिल्म सिटी के ओनर, महेश त्रिखा जी, सुधीर आईटीसी के प्रेसिडेंट। तो हम लोगों ने पूरा पहले For eminent jury, please come on stage, sir. Mr. Jis Matthew. Mr. Matthews, please. Coming to India, I think this is absolutely the pivotal moment for India, for Indian apparel and textile industry. If you look at our Vision 2030 and the goals that we have set for ourselves, this is the time for us to take inspiration from our Prime Minister's vision of 5F, from farm to fiber, fiber to fabric, fabric to fashion, and fashion to foreign. In each one of these areas, we are really, really strong, and that makes me believe that we have a very strong potential to lead the world with scale, innovation, sustainability, competitiveness, and more importantly, with our deep-rooted connection to our own heritage. The Best Global Sourcing Leader Award for Nitin Prasad ji was presented just now. Thank you so much, sir.
Thank you so much, first of all, for the award. I was just meeting the Honorable Minister, and I was just telling him that this is absolutely an amazing opportunity for India. And I have a very, very strong belief that we will utilize this opportunity. We have a responsibility for this group to take India forward while we are taking our business forward. And I'm very sure that collectively we'll do it. So thank you so much. And if I can, my daughter and my wife just flew from Bangalore to see me here. First of all, thank you to them, but if I could just bring them here, that would be awesome for me. Thank you so much. Come quick. So next award is Miss a very, very important award. A woman who started a journey from a very small office. I've been seeing her for last 30 years. She's specially flown down to Hong Kong from Hong Kong. And just for one reason she agreed to come. I said, ma'am, you are an inspiration for the women merchandisers and for the next generation. Where you've reached, it's a dream to reach. So I would like to call Deepika Rana, the group CEO of Lien Feng, and a lot of people worked under her, with her, and her journey has been absolutely amazing. So can I have the video? The category of the award for Ms. Deepika Rana, we have named it as Queen of Impact for BSL Excellence Platinum Award. So I think तालियां नहीं रुकनी चाहिए. A big round of applause for Ms. Deepika Rana. A big round of applause, please. Her family is also here to see. से आज के इस BSL ग्लोबल आउटरीच के समिट के कार्यक्रम में अभी हमने जिनका सम्मान किया और जो आयोजक है रमन जी और उनकी पूरी टीम, मनीष जी, शुक्ला जी, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दें और अपने आप के लिए भी. ये बात बिल्कुल सही है कि आमतौर पर ऐसे व्यावसायिक ग्रुपों में जिस तरह से इसकी प्लान किया गया, जिस प्रकार से 2 साल में ये कल्पना की गई है, यही बताता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का समय. जोरदार अभिनंदन अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए. देश ऐसे ही नहीं बदलता है. देश के बदलने के लिए ऐसे मन के संकल्पों की भी आवश्यकता पड़ती है. इन संकल्पों में नवीनता भी होती है, विविधता भी होती है
और हम सब मिलकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अपने अपने प्रकार के अलग अलग मार्गों से, अपने अपने व्यवसाय से भी, व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पक्षों के लिए, और कुल मिलाकर के हमारे अपने देश के अंदर के स्वस्थ वातावरण को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार से ये हमारे व्यवसायी वर्गों के लिए एक तरफ आपने सारे निर्माताओं की श्रेणी इकट्ठी की, एक तरफ आपने उनके खरीदारों के लिए भी ये मंच जुटाया, और दोनों को इकट्ठा करना ये अपने आप में नया प्रयोग भी है, नया संकल्प भी है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा सुन करके भी, जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आपसे बात करने आया हूँ। आमतौर पर यह बात सही है कि मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ा कठिन जाता है ऐसे कार्यक्रम में, क्योंकि और व्यस्तता बहुत रहती है, और ऐसे में हमारे अपने उस बड़ी व्यस्तता वाले माहौल में ऐसा वर्ग अगर छूटता है तो ये इसकी कीमत देश चुकाता है। हम केवल कल्पना करें, देश के सामने दो आंकड़े देखें। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 15वें नंबर पे आर्थिक रूप से भारत का स्थान था, और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने तब भारत 11वें नंबर पे था। अर्थात इतना लंबा समय निकल गया, लगभग काफी समय गया, लेकिन भारत की प्रगति के लिए जो जरूरी है, इसके उल्टे दुनिया के और भी देश देखो। हमारा जापान परमाणु हमले के बाद उसकी स्थिति क्या बनी थी, छिपा हुआ नहीं है। इजराइल जैसा देश, और बाकी देश के नाम में ले सकता हूँ। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने जो अपनी करवट बदली है, ये आज अपना भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान पा रहा है। ये आपके सबके कारण से जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत। और नवाचार के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। कितने अच्छे प्रकार से हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, अलग अलग सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारे बेकार प्रकार के कानून, जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय रुकता है। आज बदलते दौर में ऐसे सारे बदलाव की जरूरत भी है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया है। और आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही साल 2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने कहा 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए ये फालतू की झंझटें खत्म कर दो। इंडस्ट्री को शुरुआत में जो मदद चाहिए, उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, अब बिजली का कनेक्शन ही उसको चाहिए, और बिजली का कनेक्शन जब इंडस्ट्री अपनी क्षमता से बनने के बाद चलेगी, तब वो अपने क्षमता से चलेगी, तो मालूम पड़ा कि उसका जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन की एक्चुअल उपयोगिता तो तब चालू होगी। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा, और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू हो गया, तो इससे में वो फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी हम पूरी छूट देंगे, भाई उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के आप अंदाज लगा लो, बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, ये अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपया महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो। लेकिन रोजगार पर एक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपया महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार है। यह हमारा आज बदलता है समय रोजगार आधारित उद्योगों के लिए। आप सब प्रकार की छूट अगर देखोगे रोजगार आधारित इंडस्ट्री की, तो सब प्रकार की छूट बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सब प्रकार की छूट 200% हो जाती है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, सब कुछ सरकार का लग जाएगा, 100% नहीं 200% तक। लेकिन इसके पीछे भाव इतना ही है कि हाँ, आज बदलते दौर में भारत की हम सब के लिए उनके हमारे यहाँ के ऐसे रोजगार आधारित उद्योगों के आधार पर भारत का मेक इन इंडिया का
प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी क्षमता योग्यता से, जब हर एक देश के लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भारत के लोग क्यों पीछे रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमने देखा कि इतना बड़ा देश विविधता वाला है, इतनी बड़ी मानव संपदा हमारे सामने है, इतनी प्रकार की अनुकूलता है, उस अनुकूलता को आज हमारे लिए और अनुकूल से अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूलताओं को पराजित करके अनुकूलता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था लेकिन पर्याप्त समय दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा आपका कहाँ से, कोई कनाडा से आया, कोई कहाँ से आया, इतने दूर से अपने सारे लोग आए, तो आप सबके दर्शन का मौका मिला। ये मनीष जी का बहुत आग्रह था, एक बार मनीष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दें। हमारे अपने मित्र हैं और इनने बड़ी अपनी हिम्मत की, तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं। ये हमारी सरकार को तो लगभग अभी आज की स्थिति में 1.5 साल के आसपास ही हुआ, लेकिन मुझे ऐसे कामों में अच्छा लगता है। तो मध्य प्रदेश के लिए लगभग हमारे विभाग ने, राघवेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है कि शायद अपना 2 महीने से ऊपर समय केवल इंडस्ट्रियों को लाने में ही लग रहा है कि रोज कहीं ना कहीं रोड शो, कहीं किसी प्रकार के आयोजन हमारे हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहा है, देश के बाहर हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर हो रहे। और एक सेक्टर नहीं, आपसे भी निवेदन करना चाहूँ, हमारे लिए सभी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर इतनी अनुकूलता है जिसमें हमारी सरकार ने खुले दिल से सारे प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बधाई, जोरदार अभिनंदन। हमारे भाई के लिए दिल से इनने अच्छा प्रयोग किया और पूरी मंडली शुक्ला जी सहित सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऑडियो आपसे निकल जाना। बीएसएल के मेंबर्स को चाहूंगा कि एक बार आप सारे बीएसएल मेंबर्स ऊपर आ जाएं खाली बस। दीपिका एंड नितिन प्लीज ज्वाइन। So only BSL members please come on the stage. Only BSL members. Nivedita please come. बना लें हम लोग। सर मेंबर तो हमारे 450 हैं। किया जा रहा है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर कपास का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है और कपास के उत्पादन से हमने प्रयास किया धागा बनाने से लेकर कपड़े बनाने तक और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स तक, बायर सेलर, खरीदार और निर्माता सबका एक प्लेटफॉर्म पर हर जगह जाकर, जैसा मेरा प्रयास है देश के अंदर भी देश के बाहर भी, आज बीएसएल द्वारा ये जो अच्छा एक अनूठा आयोजन किया गया जिसमें इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए देश भर के और देश तो क्या दुनिया भर के बड़े बड़े स्वनाम धन्य ऐसी हस्तियों को एकत्र किया गया जो न केवल निर्माण इकाइयों से अपना व्यवसाय करते हैं बल्कि अपने व्यवसाय से भी दुनिया में अपनी एक अलग साख बनाते हैं। तो वॉलमार्ट से लगाकर ऐसे सारे बड़े बड़े ग्रुप यहाँ मौजूद थे। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश सरकार की हमारी सभी लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ उत्पादन प्रेमी नीतियां बना करके हमने सब प्रकार से निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी अपनी सारी पॉलिसियों पे विस्तार से बात की है।
बड़े बड़े व्यवसायियों से चर्चा की है, 1-to-1 भी किया है और कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश अब अपनी उद्योग आधारित छवि बनाते हुए कई सारे प्रकार से उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन की बधाई। तो नई दिल्ली से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स की ऐसी कई इकाइयों के उद्यमियों के साथ मेरा अपना कार्यक्रम हुआ है। एक तरफ बाहर, एक तरफ से नीतियां हैं जिससे वो अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर दिला सकते हैं। ऐसी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ चर्चा करके हमने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे इस बात का भरोसा है इसके आधार पर बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में निवेश भी आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के उत्पाद किसानों को जिनकी अपनी अलग अलग फसल का उत्पादन होता है उनको उनके योग्य प्रकार से रोजगार के अवसर के साथ योग्य कीमत भी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से सर 1-to-1 में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली से भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन ग्लोबल आउटरीच समिट चलेगा जहां भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच सेतु होगा। वैश्विक उद्योग जगत के निवेशक भी इसमें शामिल होंगे। मेड इन एमपी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल उद्योगों का जो वैश्विक आयोजन है वो इस दौरान किया जा रहा है। तो बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का ये आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए हैं। 2 दिन तक ये समिट आयोजित होगा। और इस समिट से मेड इन एमपी के उत्पादों को एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। इसके अलावा वैश्विक उद्योग जगत के निवेशक भी इसमें शामिल हुए हैं। तो बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बताते चलें कि 2 दिनों तक ग्लोबल आउटरीच समिट चलेगा जहां वैश्विक उद्योग जगत के निवेशक भी इसमें शामिल हुए हैं। और इस समिट में मेड इन एमपी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। इम्पोर्टेंट है और वो मोटिवेटेड है। तो पहला काम है हमें वो मोटिवेशन दिखाना और वो अध्यात्म दिखाना कि वो और बिजनेस दें। तो मैं चाहूंगा हमारे 5 एमिनेंट अवार्ड्स हैं यहाँ पर जो हमें आज देने हैं। विपिन, कैन आई हैव द लिस्ट? लेट मी। सो पहले मैं चाहूंगा तनुजा जी प्लीज फैसिलिटेट करें हमारे मंत्री जी को।
साल की जर्नी है। इस किताब का विमोचन हम आपसे करा रहे हैं। अपने कीमती समय में इसको जरूर पढ़िएगा और पिछले 2 साल में बीएसएल ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, उसका इसमें पूरा स्टोरी है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है पहले, और अवार्ड सिर्फ नाम के लिए है। ये इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है कि इनका अगले 5 साल का क्या प्लान है हमारे देश के लिए। प्लान तो हो गया, ख्याल तो हो गया, लेकिन वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे उसको अचीव करने के लिए, इस बेसिस पे ये अवार्ड है। तो पहला अवार्ड है नितिन प्रसाद, वॉलमार्ट। आई वुड लाइक एवरीबडी टू हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नितिन। मैं जब फोन करता हूं, नितिन बैंगलोर में नहीं होते सर, ये पूरा देश घूमते हैं, मोटिवेट करते हैं और इतनी जान लगाते हैं कि हमारा देश सेकंड लेवल पे जा सके और एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर सके। ज्यूरी टू कम हियर सर। ये अवार्ड्स हमारी एमिनेंट ज्यूरी संदीप मारवा जी, फिल्म सिटी के ओनर, महेश त्रिखा जी, सुधीर आईटीसी के प्रेसिडेंट, तो हम लोगों ने पूरा पहले For eminent jury, please come on stage, sir. Mr. Jis Matthew. Mr. Matthews, please. Coming to India, I think this is absolutely the pivotal moment for India, for Indian apparel and textile industry. If you look at our Vision 2030 and the goals that we have set for ourselves, this is the time for us to take inspiration from our Prime Minister's vision of 5F, from farm to fiber, fiber to fabric, fabric to fashion, and fashion to foreign. In each one of these areas, we are really, really strong, and that makes me believe that we have a very strong potential to lead the world with scale, innovation, sustainability, competitiveness, and more importantly, with our deep-rooted connection to our own heritage. The Best Global Sourcing Leader Award for Nitin Prasad ji was presented just now. Thank you so much, sir. Thank you so much, first of all, for the award. I was just meeting the Honorable Minister, and I was just telling him that this is absolutely an amazing opportunity for India, and I have a very, very strong belief that we will utilize this opportunity. We have a responsibility for this group to take India forward while we are taking our business forward, and I'm very sure that collectively we'll do it. So thank you so much. And if I can, my daughter and my wife just flew from Bangalore to see me here. First of all, thank you to them, but if I can just bring them here, that would be awesome for me. Thank you so much. Come quick.
So next award is Miss a very, very important award. A woman who started a journey from a very small office. I've been seeing her for last 30 years. She's specially flown down to Hong Kong from Hong Kong. And just for one reason she agreed to come. I said, ma'am, you are an inspiration for the women merchandisers and for the next generation. Where you've reached, it's a dream to reach. So I would like to call Deepika Rana, the group CEO of Lian Feng, and lot of people worked under her, with her, and her journey has been absolutely amazing. So can I have the video? The category of the award firm is Deepika Rana. We have named it as Queen of Impact for BSL Excellence Platinum Award. So I think तालियां नहीं रुकनी चाहिए. A big round of applause for Miss Deepika Rana. A big round of applause, please. Her family is also here to see her receiving this award. I would request them to come on stage and join her on this occasion. Thank you so much. I am deeply honored and thank you so much, मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो बेटियां होती हैं ना, ये जिगर की टुकड़े होते हैं. And my daughter has surprised me today. She's flown down just for this, and I'm so delighted to have my family here, my mother and my husband. So thank you so much, and thank you everyone. My team is here from Lian Feng, who have worked with me when we started this office with a very small turnover, as Raman said, and grew it to what it is today. So a lot of what हमने आज किया है, we owe to the team. So thank you, all of you, for all of your help. I would like to have a standing ovation for Deepika, because the day she joined Colby's, which is bought by Lian Feng, the first day I met her. Thank you, jury. I would request you to. The next round of award So मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ शब्द बोलें.
मेरी अपनी ओर से आज के इस BSL ग्लोबल आउटरीच के समिट के कार्यक्रम में अभी अभी हमने जिनका सम्मान किया और जो आयोजक है रमन जी और उनकी पूरी टीम, मनीष जी, शुक्ला जी, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दें और अपने आप के लिए भी। ये बात बिल्कुल सही है कि आमतौर पर ऐसे व्यावसायिक ग्रुपों में जिस तरह से इसकी प्लान किया गया, जिस प्रकार से 2 साल में ये कल्पना की गई है, यही बताता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का समय। जोरदार अभिनंदन अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। देश ऐसे ही नहीं बदलता है, देश के बदलने के लिए ऐसे मन के संकल्पों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन संकल्पों में नवीनता भी होती है, विविधता भी होती है और हम सब मिलकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अपने अपने प्रकार के अलग अलग मार्गों से, अपने अपने व्यवसाय से भी, व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पक्षों के लिए और कुल मिलाकर के हमारे अपने देश के अंदर के स्वस्थ वातावरण को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार से ये हमारे व्यवसायी वर्गों के लिए एक तरफ आपने सारे निर्माताओं की श्रेणी इकट्ठी की, एक तरफ आपने उनके खरीदारों के लिए भी ये मंच जुटाया और दोनों को इकट्ठा करना, ये अपने आप में नया प्रयोग भी है, नया संकल्प भी है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा सुनकर के भी, जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आपसे बात करने आया हूँ। आमतौर पर यह बात सही है कि मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ा कठिन जाता है ऐसे कार्यक्रम में, क्योंकि और व्यस्तता बहुत रहती है और ऐसे में हमारे अपने उस बड़ी व्यस्तता वाले माहौल में ऐसा वर्ग अगर छूटता है तो ये इसकी कीमत देश चुकाता है। हम केवल कल्पना करें, देश के सामने 2 आंकड़े देखें। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो 15वें नंबर पे आर्थिक रूप से भारत का स्थान था और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने तब भारत 11वें नंबर पे था। अर्थात इतना लंबा समय निकल गया, लगभग काफी समय गया, लेकिन भारत की प्रगति के लिए जो जरूरी है, इसके उल्टे दुनिया के और भी देश देखो। हमारा जापान परमाणु हमले के बाद उसकी स्थिति क्या बनी थी, छिपा हुआ नहीं है। इजराइल जैसा देश और बाकी देश के नाम में ले सकता हूं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने जो अपनी करवट बदली है, ये आज अपना भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान पा रहा है। ये आपके सबके कारण से जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत। और नवाचार के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। कितने अच्छे प्रकार से हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, अलग अलग सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारे बेकार प्रकार के कानून जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय रुकता है, आज बदलते दौर में ऐसे सारे बदलाव की जरूरत भी है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया है। और आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही 1-2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने कहा 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए ये फालतू की झंझटें खत्म कर दो। इंडस्ट्री को शुरुआत में जो मदद चाहिए, उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, अब बिजली का कनेक्शन ही उसको चाहिए, और बिजली का कनेक्शन जब इंडस्ट्री अपनी क्षमता से बनने के बाद चलेगी, तब वो अपने क्षमता से चलेगी, तो मालूम पड़ा कि उसका जो कनेक्शन है उस कनेक्शन की एक्चुअल उपयोगिता तो तब चालू होगी। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू हो गया, तो इससे में वो फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी हम पूरी छूट देंगे, भाई उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के
आप अंदाज लगा लो, बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, ये अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपया महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो, लेकिन रोजगार परक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपया महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार है। यह हमारा आज बदलता है समय रोजगार आधारित उद्योगों के लिए। आप सब प्रकार की छूट अगर देखोगे रोजगार आधारित इंडस्ट्री की, तो सब प्रकार की छूट बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सब प्रकार की छूट 200% हो जाती है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, सब कुछ सरकार का लग जाएगा, 100% नहीं 200% तक। लेकिन इसके पीछे भाव इतना ही है कि हाँ, आज बदलते दौर में भारत की हम सब के लिए उनके, हमारे यहाँ के ऐसे रोजगार आधारित उद्योगों के आधार पर भारत का मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी क्षमता योग्यता से, जब हर एक देश के लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भारत के लोग क्यों पीछे रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमने देखा कि इतना बड़ा देश विविधता वाला है, इतनी बड़ी मानव संपदा हमारे सामने है, इतनी प्रकार की अनुकूलता है, उस अनुकूलता को आज हमारे लिए और अनुकूल से अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूलताओं को पराजित करके अनुकूलता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन पर्याप्त समय दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा आपका कहाँ से, कोई कनाडा से आया, कोई कहाँ से आया, इतने दूर से अपने सारे लोग आए, तो आप सबके दर्शन का मौका मिला। ये मनीष जी का बहुत आग्रह था, एक बार मनीष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दें। हमारे अपने मित्र हैं और इनने बड़ी अपनी हिम्मत की, तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं। ये हमारी सरकार को तो लगभग अभी आज की स्थिति में 1.5 साल के आसपास ही हुआ, लेकिन मुझे ऐसे कामों में अच्छा लगता है। तो मध्य प्रदेश के लिए लगभग हमारे विभाग ने, राघवेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है कि शायद अपना 2 महीने से ऊपर समय केवल इंडस्ट्रियों को लाने में ही लग रहा है कि रोज कहीं ना कहीं रोड शो, कहीं किसी प्रकार के आयोजन हमारे हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, देश के बाहर हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं। और एक सेक्टर नहीं, आपसे भी निवेदन करना चाहूँ, हमारे लिए सभी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर इतनी अनुकूलता है जिसमें हमारी सरकार ने खुले दिल से सारे प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बधाई, जोरदार अभिनंदन। हमारे भाई के लिए दिल से इनने अच्छा प्रयोग किया और पूरी मंडली शुक्ला जी सहित सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऑडियो आपसे निकल जाना, बीएसएल के मेंबर्स को चाहूंगा कि एक बार आप सारे बीएसएल मेंबर्स ऊपर आ जाएं खाली बस। दीपिका एंड नितिन प्लीज ज्वाइन। So only BSL members please come on the stage, only BSL members. Nivedita please come. ये टूट नहीं जाए, ज्यादा चला जाए। बना लें हम लोग, ये तो देखो कि आपने सर मेंबर तो हमारे 450 है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है।
हमारे यहाँ राज्य के अंदर कपास का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है और कपास के उत्पादन से हमने प्रयास किया धागा बनाने से लेके कपड़े बनाने तक और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स तक बायर सेलर खरीदार और निर्माता सबका एक प्लेटफॉर्म पर हर जगह जाकर जैसा मेरा प्रयास है देश के अंदर भी देश के बाहर भी आज BSL द्वारा ये जो अच्छा एक अनूठा आयोजन किया गया जिसमें इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए देश भर के और देश तो क्या दुनिया भर के बड़े बड़े स्वनाम धन्य ऐसी हस्तियों को एकत्र किया गया जो न केवल निर्माण इकाइयों से अपना व्यवसाय करते हैं बल्कि अपने व्यवसाय से भी दुनिया में अपनी एक अलग साख बनाते हैं। तो वॉलमार्ट से लगाकर ऐसे सारे बड़े बड़े ग्रुप यहाँ मौजूद थे। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश सरकार की हमारी सभी लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ उत्पादन प्रेमी नीतियाँ बना करके हमने सब प्रकार से निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी अपनी सारी पॉलिसियों पे विस्तार से बात की है, बड़े बड़े व्यवसायियों से चर्चा की है, 1-to-1 भी किया है और कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश अब अपनी उद्योग आधारित छवि बनाते हुए कई सारे प्रकार से उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन की बधाई। खासकर टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स की ऐसी कई इकाइयों के उद्यमियों के साथ मेरा अपना कार्यक्रम हुआ है। एक तरफ बाहर एक तरफ से नीतियां हैं जिससे वो अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर दिला सकते हैं। ऐसी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ चर्चा करके हमने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे इस बात का भरोसा है इसके आधार पर बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में निवेश भी आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के उत्पादक किसानों को जिनकी अपनी अलग अलग फसल का उत्पादन होता है उनको उनके योग्य प्रकार से रोजगार के अवसर के साथ योग्य कीमत भी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से सर 1-to-1 में सर ये अवार्ड्स हमारी एमिनेंट जूरी संदीप मारवा जी, फिल्म सिटी के ओनर, महेश त्रिखा जी, सुधीर ITC के प्रेसिडेंट, तो हम लोगों ने पूरा पहले For eminent jury, please come on stage, sir. Mr. Jis Matthew. Mr. Matthews, please. Coming to India, I think this is absolutely the pivotal moment for India, for Indian apparel and textile industry. If you look at our Vision 2030 and the goals that we have set for ourselves,
This is the time for us to take inspiration from our Prime Minister's vision of 5F, from farm to fiber, fiber to fabric, fabric to fashion. है और वो मोटिवेटेड है, तो पहला काम है हमें वो मोटिवेशन दिखाना और वो अध्यात्म दिखाना कि वो और बिजनेस दें। तो मैं चाहूंगा, हमारे 5 एमिनेंट अवार्ड्स हैं यहाँ पर जो हमें आज देने हैं। विपिन, कैन आई हैव द लिस्ट? पहले मैं चाहूंगा तनुजा जी प्लीज फैसिलिटेट करें हमारे मंत्री जी को। सर, ये हमारी 2 साल की जर्नी है। इस किताब का विमोचन हम आपसे करा रहे हैं। में इसको जरूर पढ़िएगा और पिछले 2 साल में बीएसएल ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, उसका इसमें पूरा स्टोरी है। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड है पहले, और अवार्ड सिर्फ नाम के लिए है। ये इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है कि इनका अगले 5 साल का क्या प्लान है हमारे देश के लिए। प्लान तो हो गया, ख्याल तो हो गया, लेकिन वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे उसको अचीव करने के लिए, इस बेसिस पे ये अवार्ड है। तो पहला अवार्ड है नितिन प्रसाद, वॉलमार्ट। आई वुड लाइक एवरीबडी टू हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नितिन। मैं जब फोन करता हूं, नितिन बैंगलोर में नहीं होते सर, ये पूरा देश घूमते हैं, मोटिवेट करते हैं और इतनी जान लगाते हैं कि हमारा देश सेकंड लेवल पे जा सके और एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर सके।